Good morning, students. So, today we'll cover the first poem of our book Honeysuckle, and the name of our poem is A House, a Home, and it is written by Lauren M. Hulley. So, before we start the poem, I just wanted to ask you a few questions. So, our first question is, where do you live? Do you live in a house or a home? Just think over it. So, my second question is, do you have your own home? Yes, we all have our own home and we live in it. The third thing I wanted to know that what is the difference between a house and a home? So, students, let me tell you the difference between a house and a home. A house refers to a building made of bricks, cement, stones, etc. हाउस उस बिल्डिंग को एक मकान जो होता है, ठीक है, हाउस हम मकान को बोलते हैं, उस बिल्डिंग को रेफर करता है जो कि किससे बनती है, ईंटों से बनती है, सीमेंट से बनती है, स्टोन से बनती है. And on the other hand, a home refers to a place where a family lives together. Home किसको रेफर करती है, उस प्लेस को रेफर करती है जहाँ पर एक फैमिली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहती है. So in our poem, we'll read the difference between a house and a home. So let's proceed towards our poem now. A house, a home. And our poem, it is written by Lauren M. Hulley. So, as I told you earlier, that what we are going to read in our poem will be reading an explanation about the difference between a house and a home. And the poet, he also elaborates, he also is explained the role of the family members in a home. ठीक है, कि अलग अलग फैमिली मेम्बर्स का एक घर में एक होम में क्या रोल होता है, ठीक है, वो भी क्या पोइट ने बहुत अच्छे से पोएम में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो इन दिस पोएम ही हैज ट्राइड टू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ home. So now let's proceed towards our first extract. Firstly, we'll read the poem and then we'll have its explanation. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. So, see your first extract in the very first line what the poet had said. He has asked a question. Okay, that what is a house, and in rest of the extract he has explained to us that what is the house according to the poet. So in the very first stanza, the poet is explaining the material that is used to make a house. ठीक है, पोइट ने सारा मटेरियल एक्सप्लेन किया कि घर को बनाने के लिए किस किस सामान की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. It's brick and stone and woods that hard. So the poet says that bricks, stones and wood are used to make a house. ठीक है, घर को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, ईंटें लगती हैं, stones लगते हैं और wood लगती है. Some window glass and perhaps a yard. It also has window glass and corridors or open space in front and back of the house for gardening. ठीक है, now what is the meaning of yard? Yard क्या होता है? Yard generally it is a measuring unit, ठीक है, but here it is a garden or we can say a corridor that is outside or of our house. ठीक है, so a house it also has window glass and corridors or an open space in front and back of the house for gardening. ठीक है, घर में क्या होती है, विंडोज भी होती हैं और क्या होता है, कॉरिडोर्स भी होते हैं और ओपन स्पेस भी होता है ना मकान में, हमारे किसके मकान के आगे भी और पीछे भी, जो कि हम गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं. इट्स eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. Now see first what is the meaning of stucco. Stucco is a paint, ठीक है, that is used for wall surface, है ना, दीवारों पर हम जो पेंट करते हैं that is stucco. And what is chimney? Chimney is the pipe which takes out smoke or gases from our houses, from kitchen, ठीक है.
So tiles of the floor find paints, roof elevations of the roof and many doors that give it a perfect look of a house. है ना, एक मकान को बनने में क्या क्या लगता है, टाइल्स लगती हैं, पेंट लगता है ना, फिर छत होती है, देन यू हैव दैट एलिवेशन ऑफ द रूफ, है ना, जिसको हम छज्जा बोलते हैं, ठीक है, वो भी है हमारे पास। देन और क्या लगता है ना, बहुत सारे दरवाजे लगते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एक अच्छा मकान बनाती है, ठीक है। बट ये मकान क्या होता है, इट इज़ कम्प्लीटली अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम फॉर यू। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द material that is used to make a house. The poet says that bricks, stone, wood are used to make a house. It also has window glass and corridors or open space in front and back of the house for gardening. Tiles of the floor, fine paints, roof elevations of the roof and many doors that give it a perfect look of a house. Thus the house is a completely non-living thing. ठीक है, तो एक मकान को बनाने में क्या क्या लगता है, ईंटें लगती हैं, है ना, स्टोन लगता है, वुड लगती हैं, विंडो ग्लासेस होते हैं, उसमें ओपन स्पेस होता है घर के आगे पीछे, ठीक है। इट हैज़ ईव्स ऑल्सो, जो छज्जे होते हैं ना रूफ से निकले हुए, ईव्स जिससे हमें शेड मिलती है, चिमनीज़ होती हैं, टाइल के फ्लोर्स होते हैं, पेंट होता है, रूफ होता है, दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक अच्छा मकान बनाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मकान होता है ये क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। नाउ सी योर सेकंड extract. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. ठीक है? So here in this extract, the poet has explained the nature of a home and what makes a house a home. ठीक है, कि होम है ना क्या होता है और वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि एक हाउस को क्या बनाती हैं, एक होम बनाती हैं. So it's loving and family and doing for others. So it is the family members, brothers and sisters, mothers and fathers who together make a home. ठीक है, जो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब हम मिलजुल कर एक मकान में रहते हैं तो वो मकान क्या बन जाता है, घर बन जाता है. So it's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. ठीक है, their acts without any selfish interest. Their concern for each other. Their wish to work for each other's happiness and well-being. ठीक है, जो हमारे सब फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक दूसरे के लिए क्या बिना अपने बारे में सोचे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, है ना, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सारी है ना खुशी का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सारी विशेस पूरा करते हैं. हम ये चाहते हैं ना हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हेल्दी रहे, है ना, उन सब की हेल्थ अच्छी हो, इसलिए हम सब एक दूसरे की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द अनसेल्फिश एक्ट, है ना, बिना अपने बारे में सोचे दूसरों के लिए काम करना. एंड काइंडली शेयरिंग, है ना, बहुत है ना काइंडनेस के साथ हम अपनी सारी चीज़ें क्या करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. ठीक है, और अपने है ना जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें ये दिखाना कि हाँ हम आपकी क्या करते हैं, केयर करते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी विश है ना, टू शो आवर लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, ये विश ही क्या बनाती है, एक हाउस को क्या बनाती है, एक होम बनाती है. ये विश क्या करती है, एक मकान को एक घर बनाती है. ठीक है, सो आई होप है ना दिस पोएम इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय यू. So one more time I'll explain the second extract for you. So here in this extract the poet has explained the nature of a home and what makes a house a home. It is the family members, brothers and sisters, mothers and fathers who together make a home. Their act without any selfish interest, their concern for each other, their wish to work for each other's happiness and well-being, their wish to show love and care towards each other is what makes a house a होम. ठीक है, घर एक घर क्या होता है जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, है ना, बिना अपने बारे में सोचे दूसरों के लिए काम करें, सारी चीज़ें अपनी शेयर करें और दूसरों को ये दिखाए कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी केयर करते हैं. और इन्हीं सब वजह से क्या होता है, एक हाउस जो होता है वो क्या बन जाता है, एक होम बन जाता है. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर समरी नाउ. सो हेयर द पोएट हैज ट्राइड टू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. है ना, पोइट ने कोशिश की है हमें समझाने की कि वो अलग से एक हाउस और होम को डिफाइन कर सके एंड ऑल्सो टू डिफ्रेंशिएट, है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सके. ही सेज दैट अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स,
स्टोन एंड हार्डवुड। ठीक है, कि एक मकान जो होता है वो किन चीज़ों से बना होता है, ब्रिक से, स्टोन से और हार्डवुड से। इट ऑल्सो हैज़ फाइन पेंट्स, चिमनीज, विंडो ग्लास डोर्स, कॉरिडोर, रूफ एंड टाइल फ्लोर्स। अ होम इज़ अनदर नेम फॉर लविंग फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, जहाँ फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वही क्या होता है, घर होता है। हु टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड वर्क सेल्फलेसली फॉर वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं जहाँ पर लोग, और एक दूसरे के लिए काम करते हैं बिना अपने बारे में सोचे, एक दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स टुगेदर मेक अ होम। ठीक है, एक फैमिली ही, सब फैमिली के जितने भी मेंबर मिलजुल कर क्या बनाते हैं, एक होम बनाते हैं। सो इट इज़ द अनसेल्फिश एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड शेयरिंग टूवर्ड्स वन अनदर दैट मेक्स अ हाउस अ होम। ठीक है, और ये जो अनसेल्फिश एक्ट है, बिना अपने बारे में सोचे पहले दूसरों के बारे में सोचना, है ना, और सारी चीज़ें अपनी एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे की केयर करना, ये क्या करता है, एक हाउस को एक होम बना देता है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पोएम, है ना, वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ हाउस एंड व्हाट इज़ अ होम। ठीक है, a house is just a building made of bricks, stones and wood. And what is a home? Home क्या होता है? Home is a place where a family lives together happily. So this is all about our poem. I hope you have understood everything about this poem.